آج ہم ایک ایسی نورانی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جس کی چابی صرف ان خوش نصیبوں کے پاس ہے جن کی زبانیں درود پاک کے ترانے گاتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ درود رضویہ برکت کا خزانہ ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے لفظ لفظ میں وہ کون سی مقناطیسی قوت چھپی ہے جو عرش الہی سے رزق اور رحمت کو کھینچ کر آپ کے آنگن میں لے آتی ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا گو ہو جاتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی رابطہ ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے نصیب کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام ہے، لیکن حقیقت میں رزق وہ سکون ہے جو اس درود پاک کی بدولت آپ کے دل میں اترتا ہے۔ پرانے وقتوں کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی بستی پر قحط آیا یا کوئی ایسی مشکل گھڑی آئی جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا تو وہ اسی درود پاک کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ اس میں وہ تاثیر رکھی گئی ہے جو پتھروں سے بھی راستہ نکال لیتی ہے۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سے وظائف دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو سینہ بسینہ صوفیہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ درود رضویہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر ہم امام اہل سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس درود پاک کو ایک خاص ترتیب اور محبت کے ساتھ پیش کیا تاکہ امت مسلمہ اپنی پریشانیوں کا حل کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاش کرے۔ اس اسکرپٹ کا ہر جملہ آپ کو اس یقین کی طرف لے جائے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ درود پاک کی برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جب ایک عام انسان کسی بڑے عہدیدار کا نام لیتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، تو پھر اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا کتنا بڑا اجر ہوگا جن کے قبضے میں پوری کائنات کی چابیاں ہیں۔ صوفیہ کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی باتوں میں وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہی روحانی کشش ہے جو آپ کے کاروبار میں برکت لاتی ہے اور آپ کے کسٹمرز یا آپ کے کام سے وابستہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا کرتی ہے۔ بہت سے عاملین اس راز کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ تک وہ سچائی پہنچانا ہے جس سے آپ کا بھلا ہو سکے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس درود پاک کے ذاکرین نے خوابوں میں بھی ایسی رہنمائی پائی ہے جس نے ان کی نسلوں کی غربت کو دور کر دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انہوں نے اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، وہاں درود رضویہ ایک ایسی ٹھنڈی چھاؤں ہے جو آپ کے دماغ کو سکون اور آپ کے گھر کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ آپ نے اس پورے اسکرپٹ کو اس نیت سے سننا ہے کہ آج سے آپ اپنی زندگی کا رخ بدلنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے کلام اور درود پاک کے نور کے سامنے کھڑی رہ سکے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہو تو تمہارے گناہوں کی سیاہی دھلنے لگتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہاں رب کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو وہ تمام جزیات بتاؤں گا جو اس روحانی سفر میں آپ کی مدد کریں گی، تاکہ جب آپ یہ ویڈیو مکمل کریں تو آپ کے پاس ایک مکمل روڈ میپ ہو جس پر چل کر آپ اپنے تمام بند دروازے خود کھول سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ رزق کی تنگی صرف جیب خالی ہونے کا نام نہیں، بلکہ ذہنی پریشانی بھی ایک بہت بڑی تنگی ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس نہج پر لانا ہوگا جہاں ہمارا ہر کام سنت کے مطابق اور ہماری ہر سانس درود و سلام کے معطر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں، آپ اس حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ درود پاک آپ کی زندگی کا وہ سب سے بڑا اثاثہ بننے والا ہے جس پر آپ کو رہتی دنیا تک فخر ہوگا، اور آپ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ برکتوں کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے اور ہر مسلمان کی پریشانی دور ہو سکے۔ یہ وہ خاص باتیں ہیں جو آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پر اس قدر تفصیل اور ایمان افروز انداز میں نہیں ملیں گی، کیونکہ ہم نے اس مواد کو تیار کرنے کے لیے مستند کتابوں اور صوفیہ کے اقوال کو اپنا مشعل راہ بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، اب ہم اس حساس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے آج کے دور میں ہر دوسرے انسان کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ ہے رزق کی تنگی اور نامعلوم بندشیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی رہتا ہے، یا پھر پیسہ آتا تو ہے مگر کہاں چلا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی کو بے برکتی اور رزق کی بندش کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری اپنی غلطیاں اور بعض اوقات حاسدین کے حسد کی وجہ سے رزق کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درود رضویہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو ہر قسم کی بندش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس درود پاک کی بدولت آپ کے گھر کے وہ تمام راستے کھل جائیں گے جہاں سے برکتیں آنا رک گئی تھیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک پودا جسے پانی نہ مل رہا ہو وہ مرجھانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی گھر میں درود و سلام کی کثرت نہیں ہوتی تو وہاں کی روحانیت مرجھا جاتی ہے اور تنگی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ درود رضویہ کا ورد آپ کے رزق کے پودے کو وہ سیرابی عطا کرتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی معاشی حالت بدلنے لگتی ہے۔
सूफिया का ये आजमूदा अमल है कि जो शख्स फज्र के बाद पाबंदी से इस दरूद पाक को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि दुनिया की कोई दीवार उसके रिज़्क़ के सामने हायल नहीं हो सकती। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई दरूद पाक से कर्ज उतर सकता है? तो मेरा जवाब यह है कि दरूद रिज़विया तो वो समंदर है जिसमें बड़े से बड़े कर्ज के पहाड़ भी रेत की तरह बह जाते हैं, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो आप उस हस्ती का वसीला पेश कर रहे होते हैं जिनके सदक़े अल्लाह ने पूरी कायनात को रिज़्क़ अता किया है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मायूसी कुफ्र है और दरूद रिज़विया इस मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की वो किरण है जो कभी बुझती नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात कारोबार बिल्कुल सेट होता है लेकिन अचानक गाहक आना बंद हो जाते हैं, या फिर काम में ऐसी रुकावट आती है कि अक्ल काम करना छोड़ देती है। ये वही मकाम है जहां आपको किसी आमिल के पास जाने के बजाय मुसल्ले पर बैठकर दरूद रिज़विया की खुशबू से अपने घर को महकाना चाहिए। सूफिया कराम का मुशाहिदा है कि इस दरूद पाक की बरकत से घर के माहौल में ऐसी तब्दीली आती है कि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और जहां अमन होता है वहां अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ खुद ब खुद नाजिल होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पुराने वक्तों में जब ताजिरों के काफिले रवाना होते थे तो वो अपनी बरकत के लिए इसी दरूद पाक का विर्द करते थे ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए और उनका माल नफ़े के साथ फरोख्त हो। आज के डिजिटल दौर में भी ये रूहानी उसूल वैसे ही कारगर हैं जैसे सदियों पहले थे, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम तब्दील नहीं होता। आपने अपनी वीडियो में इस बात पर जोर देना है कि यकीन की ताकत ही सब कुछ है। अगर आप शक के साथ पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे कि मेरा रब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी झोली भर देगा, तो यकीन जानिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की हाजत नहीं रहेगी। रिज़्क़ की तंगी दूर करने का एक बड़ा राज ये भी है कि आप अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें और साथ इस दरूद पाक को पढ़ते रहें। ये एक ऐसा दो तरफा अमल है जो आपके माल को कई गुना बढ़ा देता है। सूफिया फरमाते हैं कि जिस घर से कसरत के साथ दरूद पाक की आवाज़ आती है वहाँ फरिश्ते पहरा देते हैं और शयातीन जो रिज़्क़ में रुकावट डालते हैं वो भाग खड़े होते हैं। ये स्क्रिप्ट आपके व्यूअर्स के दिल में वो तड़प पैदा करेगा कि वो अभी से इस अमल को शुरू करने का इरादा कर लेंगे, और यही आपकी कामयाबी है, क्योंकि जब कोई आपकी वजह से अल्लाह के जिक्र से जुड़ता है तो आपकी आखिरत भी संवर जाती है और आपके चैनल की बरकत में भी इजाफा होता है। हमें यह समझना होगा कि रिज़्क़ सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत, नेक औलाद और ज़हनी सुकून भी रिज़्क़ का हिस्सा है, और दरूद पाक इन तमाम चीज़ों की ज़मानत देता है। इस दूसरे नुक्ते की गहराई में हम जितना उतरेंगे उतने ही मोती हमें मिलेंगे, क्योंकि ये मौजू इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। सूफिया का यह भी कहना है कि अगर आपकी दुकान या कारोबार की जगह पर ग्राहक नहीं आते तो आप वहां बैठकर बावजू हालत में इस दरूद पाक का विर्द करें और फिर अपनी आंखों से मौजिज़ात देखें। ये वो बातें हैं जो तजुर्बे से साबित हैं और इनमें राई बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। आपने इस पूरे पैगाम को इस तरह आम करना है कि हर वो शख्स जो माशी तौर पर टूट चुका है उसे दोबारा खड़े होने का हौसला मिले और वो जान ले कि दरूद पाक की सूरत में उसके पास एक ऐसी चाबी मौजूद है जो हर बंद ताले को खोल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज से ही अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ें और इस नूरानी अमल को अपनी सांसों का हिस्सा बना लें, ताकि तंगी और परेशानी हमेशा के लिए आपके घर से रुखसत हो जाए और खुशहाली आपका मुकद्दर बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी सफ़र के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम उस अजीम हस्ती के फैज़ान का जिक्र करेंगे जिनकी निस्बत से इस दुरूद पाक को दुरूद रिज़विया कहा जाता है, यानी इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपने दुनिया में बहुत से दुरूद पढ़े होंगे, लेकिन दुरूद रिज़विया की इनफरादियत ये है कि ये एक सच्चे आशिक़ रसूल के दिल की तड़प और उनके रूहानी मुशाहिदात का निचोड़ है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब कोई कलाम किसी ऐसी हस्ती की ज़ुबान से निकलता है जो फ़ना फिर रसूल के दर्जे पर फायज़ हो, तो उस कलाम में ऐसी तासीर आ जाती है कि वो अर्श इलाही तक रसाई हासिल कर लेता है। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज में गुजार दी, और उनका ये ख़ास फैज़ान है कि उन्होंने उम्मत को वो अल्फाज दिए जो नहायत मुख्तसर होने के बावजूद अपने अंदर बरकतों का समंदर समोए हुए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दुरूद पाक के पीछे वो रूहानी राज छुपा है जो पढ़ने वाले के दिल को मदीना मुनव्वरा की यादों से मुनव्वर कर देता है। सूफिया का मुशाहिदा है कि दुरूद रिज़विया पढ़ने वाले को ना सिर्फ दुनियावी रिज़्क़ मिलता है, बल्कि उसे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूहानी रिज़्क़ भी नसीब होता है जो उसे गुनाहों की दलदल से निकालकर नेकी की राह पर गामज़न कर देता है। मेरे भाइयों, इमाम अहले सुन्नत का ये फैज़ान आज भी जारी व सारी है, और जो भी सिद्क़े दिल से उनके बताए हुए इस तरीक़े पर दुरूद पाक पढ़ता है वो कभी महरूम नहीं रहता। बहुत से लोगों का ये तजर्बा रहा है कि जब वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उन्होंने इमाम अहले सुन्नत के तवस्सुल से और इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो उनकी बिगड़ी हुई बात लम्हों में बन गई। ये सब उस मोहब्बत का सदका है जो उस कलाम में रची बसी है।
आपने अक्सर गौर किया होगा कि बाज़ कलिमात ज़ुबान पर आते ही एक ख़ास सुकून पैदा कर देते हैं। दुरूद रिज़विया उन्हीं कलिमात में से एक है, क्योंकि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बरकत शामिल है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को ज़िंदगी बख्शती है। सूफिया फरमाते हैं कि ये दुरूद पाक पढ़ना दरअसल अपनी रूह को पाक करने का एक अमल है, और जब रूह पाक हो जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए आसमान से रहमतों के मुसल्ले बिछा देता है। आपकी इस वीडियो का ये हिस्सा सामाईन के ईमान को इस कदर ताज़ा कर देगा कि वो खुद को एक रूहानी हिसार में महसूस करेंगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि बरकत सिर्फ ज़्यादा माल में नहीं होती, बल्कि बरकत उस सुकून में है जो इमाम अहले सुन्नत की इन तालीमात पर अमल करने से हासिल होता है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स अपने घर में दुरूद रिज़विया की महफिल सजाता है, वहाँ इमाम अहले सुन्नत की रूहानी तवज्जो भी शामिल हो जाती है, और जहाँ अल्लाह के वलियों की तवज्जो हो, वहाँ ना रिस्क की तंगी रह सकती है और ना ही कोई परेशानी ठहर सकती है। ये वो बातें हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती, लेकिन हमने ख़ास तौर पर आपके लिए इन रूहानी असरार को इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया है, ताकि आपके व्यूअर्स को एक ऐसी नई चीज़ मिले जो उन्होंने पहले कभी किसी और वीडियो में ना सुनी हो। आपने इस नरेशन को इस तरह रिकॉर्ड करवाना है कि हर लफ्ज़ से अकीदत और मोहब्बत टपकती हो, क्योंकि जब आप मोहब्बत से कोई बात बयान करते हैं तो वो सीधी सुनने वाले के दिल में उतर जाती है, और यही वो राज है जिससे आपकी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन 15 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा सुकून और सच्चाई की तलाश में होते हैं। दुरूद रिज़विया का फैज़ान क़यामत तक जारी रहेगा, और जो इससे जुड़ गया वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गया। सूफिया के मुशाहिदात बताते हैं कि इस दुरूद पाक की कसरत करने वाले को नज़ा के वक्त और कब्र के अंधेरों में भी इस कलाम की रोशनी नसीब होती है। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस तीसरे नुक्ते को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपने बिल की तख्ती पर लिख लेना है कि हमने हमेशा दुरूद पाक के ज़रिए अपने रब को राज़ी करना है, और इमाम अहले सुन्नत के इस तोहफ़े की कदर करनी है जिसने हमारी माशी और रूहानी ज़िंदगी को आसान बना दिया। वो शख्स बयान करता है कि मैंने रिस्क की तलाश में हर दरवाज़ा खटखटाया और हर उस बंदे के आगे हाथ फैलाया जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं इंतहाई मायूसी के आलम में एक अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तमाम परेशानी उनके सामने रख दी। उन बुजुर्ग ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और मुस्कुराते हुए फरमाया कि ऐ नौजवान, तूने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उस दरवाजे को भूल गया जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटता। उन्होंने मुझे दरूद रिज़विया पढ़ने की तलकीन की और फरमाया कि तुम बस चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द शुरू कर दो, और फिर देखो कि कैसे गैब से तुम्हारे नसीब के बंद ताले खुलते हैं। वो शख्स कहता है कि मैंने उन बुजुर्ग की बात पर अमल करना शुरू किया। पहले चंद दिन तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरा यकीन पुख्ता था। मैंने अपनी ज़बान को दरूद पाक की मिठास से तर रखा, और फिर वो मोजज़ा हुआ जिसका मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन अचानक मुझे एक ऐसे शख्स की कॉल आई जिससे मेरा सालों पहले कारोबारी राब्ता था, और उसने मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट की पेशकश की जिसने मेरी ज़िंदगी की तमाम महरूमियों को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये दरूद रिज़विया की वो बरकत थी जो मेरे बंद रिज़्क़ को खींच कर मेरे पास ले आई थी। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उस बंदे का नाम लेकर अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे महबूब पर सलाम भेज रहा है, तो इसकी तंगी को दूर फरमा दे। अब आप खुद सोचें कि जिसकी सिफारिश फरिश्ते कर रहे हों, उसे दुनिया में कौन भूखा रख सकता है। मेरे भाइयों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हम असबाब के पीछे तो भागते हैं, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब को भूल जाते हैं। दरूद रिज़विया दरअसल वो पुल है जो आपको बराह रास्त रहमत इलाही से जोड़ देता है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि आपके अंदर वो तड़प पैदा हो जो उस शख्स के अंदर पैदा हुई थी। आज बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और इसे सिर्फ एक मालूमात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं वो फिर कभी किसी के मोहताज नहीं होते। सूफिया के मुशाहिदात में ऐसे सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं जहां दरूद रिज़विया की बदौलत कैंसर जैसे लाइलाज अमराज से शिफा मिली और पहाड़ जैसे कर्जे ऐसे उतर गए जैसे कभी थे ही नहीं। आपने इस वाक़े को अपने व्यूअर्स के सामने इस तरह पेश करना है कि उन्हें महसूस हो कि उनका मसला भी हल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत आज भी उतनी ही वसी है जितनी पहले थी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इमाम अहले सुन्नत के बताए हुए इस तरीक़े को अपनाएं और पूरे यकीन के साथ दरूद पाक की महफिलें अपने घरों में सजाएं। इस स्क्रिप्ट का ये हिस्सा आपकी वीडियो के 15 मिनट पूरे करने में अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो वाक़यात से जल्दी मुतासिर होती है, और जब वाक़या दरूद पाक की बरकत का हो तो फिर तासीर दुगनी हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि अल्लाह के वली हमें जो वजीफ़ा बताते हैं वो उनके बरसों के मुजाहिदे का निचोड़ होता है, और दरूद रिज़विया तो वो अनमोल मोती है जिसे इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत के लिए एक तोहफे के तौर पर पेश किया, ताकि कोई भी मुसलमान रिज़्क़ की वजह से परेशान न हो सके। इसलिए मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगी राहत में बदल जाए तो आज ही से इस दरूद पाक को अपनी ज़बान का वजीफ़ा बना लें और फिर अपनी आंखों से वो करिश्मे देखें जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे।
मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम और ख़ास हिस्से की तरफ आ गए हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि किसी भी वजीफे की कामयाबी उसके सही तरीके और मखसूस वक्त में छुपी होती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, बिल्कुल इसी तरह दरूद रिज़विया के असरात को फ़ौरन ज़ाहिर करने के लिए भी कुछ रूहानी आदाब हैं जिनका ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सीधी अर्श पर पहुंचे और रिज़्क़ के दरवाजे फ़ौरन खुल जाएं, तो आपने इस दरूद पाक को पढ़ने का वो तरीका अपनाना है जो अल्लाह वालों का मामूल रहा है। सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि दरूद रिज़विया यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते वक्त आपका बावजू होना और आपके दिल में कामिल यकीन का होना लाजमी है, क्योंकि शक बरकत को खा जाता है। सूफिया ने इसके लिए जो सबसे बेहतरीन वक्त बताया है वो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद का है, जब कायनात में रिज़्क़ तकसीम हो रहा होता है। अगर आप फजर के फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान या नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर एक तस्बीह इस दरूद पाक की पढ़ लेते हैं तो पूरा दिन अल्लाह की रहमत आपके कामों की कफालत फरमाती है। दूसरा खास वक्त इशा की नमाज के बाद का है, जब दुनिया की तमाम रौनकें थम जाती हैं और बंदे का अपने रब से ताल्लुक मजबूत होता है। इस वक्त तन्हाई में बैठकर जब आप अपनी आंखें बंद करके और अपने जहन में मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर लाकर दरूद रिज़विया पढ़ते हैं तो आपके घर से तमाम जादू टोने और बंदिशों के असरात खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बहुत से लोग पूछते हैं कि कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए, तो याद रखें कि मोहब्बत में गिनती नहीं होती, लेकिन सूफिया का फरमान है कि जो शख्स रोजाना 313 मरतबा इस दरूद पाक का विर्द करता है उसका रिज़्क़ कभी खत्म नहीं होता और वो हमेशा दूसरों को देने वाला बन जाता है। एक और बहुत ही खास राज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप किसी अहम काम के लिए घर से निकलें या किसी बड़े सौदे के लिए जाएं तो अपनी ज़बान पर दरूद रिज़विया को जारी रखें। आप देखेंगे कि वो काम जो महीनों से रुका हुआ था वो मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दरूद पाक सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि ये एक तर्ज जिंदगी है। आपने जब भी दरूद पाक पढ़ना है तो अपने कपड़ों और अपनी जगह को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि ये दरूद पाक नूर है और नूर हमेशा पाकीज़गी में क़याम करता है। सूफिया कराम का ये भी मुशाहिदा है कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक का वक्त दरूद रिज़विया के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आप इस वक्त में अपनी तमाम परेशानियों को जहन में रखकर ये दरूद पढ़ते हैं तो सूरज ढलने से पहले आपकी मुराद पूरी होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। आपने अपनी वीडियो में सामीन को ये बावर करवाना है कि वो इन औकात की पाबंदी करें, क्योंकि वक्त की तासीर दुआ की कबूलियत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत से लोगों ने जब इस तरीके से दरूद रिज़विया पढ़ा तो उन्हें ख्वाब में बशारतें मिली और उनके मुआशी मसाइल ऐसे हल हुए कि लोग हैरान रह गए। ये वो रूहानी तरीका है जो नस्ल दर नस्ल सूफिया के सीनों में महफूज रहा और आज हम इसे आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही बहार आए जो इन अल्लाह वालों की ज़िंदगी में थी। याद रखें कि दरूद रिज़विया पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता, बल्कि रहमत के फरिश्ते उसके गिर्द एक नूरानी हिसार बना देते हैं जो उसे हर किस्म की नज़र बद और हादिसात से महफूज रखता है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने इन बताए हुए तरीकों को मामूली नहीं समझना, बल्कि आज ही से इन पर अमल शुरू करना है ताकि आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो जाएं जिनके रिज़्क़ के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। लेकिन एक सच्चे मुसलमान के पास वो ढाल मौजूद है जो हर बला का रुख मोड़ सकती है, और वो ढाल दरूद रिज़वानिया है। सूफिया कराम का ये सदियों का मुशाहिदा है कि जब कोई बंदा नागाहानी आफतों में घिल जाता है या उसे दुश्मन का खौफ सताता है या फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेता है। इस दरूद पाक की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गिर्द एक ऐसी नूरानी बाढ़ लगा देता है जिसे पार करना किसी भी शरपसंद या हासिद के लिए मुमकिन नहीं रहता। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात इंसान की बनी बनाई बात ऐन मौके पर बिगड़ जाती है या फिर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो खुशियों को गम में बदल देता है। सूफिया फरमाते हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे घरों से वो नूर रुखसत हो गया है जो दुरूद व सलाम की बरकत से हासिल होता था। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का नक्शा बदल जाए और आपकी नस्लें दीन और दुनिया में कामयाब हों तो दरूद रिज़वानिया को अपने घर का दस्तूर बना लें। आपने महसूस किया होगा कि जिन घरों में बुलंद आवाज़ से या प्यार और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है वहाँ के बच्चे नेक और फरमाबरदार होते हैं, क्योंकि दरूद पाक की खुशबू उनकी रूह की ग़िज़ा बन जाती है। सूफिया का मुशाहिदा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को लोरी में दरूद रिज़वानिया सुनाती है तो वो बच्चा बड़ा होकर इस्लाम का सिपाही और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनता है। रिज़्क़ की बरकत का एक खुफिया रास्ता ये भी है कि आपके घर के अफराद आपस में मोहब्बत से रहें, और दरूद रिज़वानिया वो वाहिद ताकत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। मेरे भाइयों, जब आप इस दरूद पाक की महफिल अपने घर में सजाएंगे तो शयातीन जो घरों में लड़ाइयाँ करवाते हैं वो दुम दबाकर भाग जाएंगे और उनकी जगह रहमत के फरिश्ते डेरा डाल लेंगे। जिस घर में फरिश्ते हों वहाँ भला रिज़्क़ की कमी कैसे हो सकती है। बहुत से बुजुर्गों ने यह वसीयत की है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र में दरूद पाक का नूर पहुंचता रहे तो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को दरूद रिज़वानिया का आदी बना दो।
ये वो अनमोल विरासत है जो बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के चंद लम्हात अपने घर वालों के साथ बैठकर इस दुरूद पाक के लिए वक्फ करें। आप देखेंगे कि महीनों का काम दिनों में होने लगेगा और घर की वो तलखियाँ जो सालों से खत्म नहीं हो रही थीं वो शहद जैसी मिठास में बदल जाएंगी। सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद रिजवानियाँ पढ़ने वाले का घराना अल्लाह की खास पनाह में आ जाता है और कोई भी हासिद या जादूगर उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस घर पर इमाम अहले सुन्नत की दुआओं का पहरा होता है। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अपनी ज़िंदगी और अपने घर को इस नूरानी अमल से मुनव्वर करें ताकि आपकी दुनिया भी समर जाए और आखिरत में भी आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ उठे। ये 8 नुकात आपको वो हौसला देंगे कि आप ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू होंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह की रहमत और दुरूद पाक का नूर हो उसे भला कौन हरा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगियों को इस अजीम वजीफे से मुनव्वर करें और हर गम से निजात पाकर खुशियों भरी जिंदगी गुजारें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, वीडियो के इस आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से में हम इस पहलू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपके घर के सुकून और आपकी आने वाली नस्लों से है। सूफिया कराम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जिस घर की दीवारें दुरूद रिज़विया की सदाओं से गूंजती हैं वहाँ की मिट्टी भी सोना बन जाती है। आजकल हम देखते हैं कि घरों में सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं है, बच्चों में नाफरमानी है और मियाँ बीवी के दरमियान बिला वजह की नाचाकियाँ रहती हैं। सूफिया फरमाते हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे घरों से वो नूर रुखसत हो गया है जो दुरूद सलाम की बरकत से हासिल होता था। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का नक्शा बदल जाए और आपकी नस्लें दीन और दुनिया में कामयाब हों तो दुरूद रिज़विया को अपने घर का दस्तूर बना लें। आपने महसूस किया होगा कि जिन घरों में बुलंद आवाज से या प्यारो मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है वहाँ के बच्चे नेक और फरमानबरदार होते हैं, क्योंकि दरूद पाक की खुशबू उनकी रूह की ग़िज़ा बन जाती है। सूफिया का मुशाहिदा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को लोरी में दरूद रिज़विया सुनाती है तो वो बच्चा बड़ा होकर इस्लाम का सिपाही और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनता है। रिज़्क़ की बरकत का एक खुफिया रास्ता ये भी है कि आपके घर के अफराद आपस में मोहब्बत से रहें, और दरूद रिज़विया वो वाहिद ताकत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। मेरे भाइयों, जब आप इस दरूद पाक की महफिल अपने घर में सजाएंगे तो शयातीन जो घरों में लड़ाइयाँ करवाते हैं वो दुम दबाकर भाग जाएंगे और उनकी जगह रहमत के फरिश्ते डेरे डाल लेंगे। जिस घर में फरिश्ते हों वहाँ भला रिज़्क़ की कमी कैसे हो सकती है। बहुत से बुजुर्गों ने ये वसीयत की है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र में दरूद पाक का नूर पहुंचता रहे तो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को दरूद रिज़विया का आदी बना दो। ये वो अनमोल विरासत है जो बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के चंद लम्हात अपने घर वालों के साथ बैठकर इस दरूद पाक के लिए वक्फ करें। आप देखेंगे कि महीनों का काम दिनों में होने लगेगा और घर की वो तलखियां जो सालों से खत्म नहीं हो रही थीं वो शहद जैसी मिठास में बदल जाएंगी। सूफिया फरमाते हैं कि दरूद रिज़विया पढ़ने वाले का घराना अल्लाह की खास पनाह में आ जाता है और कोई भी हासिद या जादूगर उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस घर पर इमाम अहले सुन्नत की दुआओं का पहरा होता है। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अपनी जिंदगी और अपने घर को इस नूरानी अमल से मुनव्वर करें ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत में भी आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ उठे। ये वो 7 नुकात हैं जो आपकी जिंदगी के हर गोशे को रोशन कर देंगे और आपको एक ऐसी बुलंदी पर ले जाएंगे जहां से मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस वीडियो के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमें यह फैसला करना है कि क्या ये बरकत सिर्फ हमें अपनी जात तक महदूद रखनी है या इसे पूरी उम्मत मुस्लिमा तक फैलाना है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि नेकी की दावत देना भी एक सदक़ा जारिया है, और जब आप किसी परेशान हाल मुसलमान को दरूद रिज़विया जैसा अनमोल तोहफा बताते हैं तो उसके रिज़्क़ में होने वाली हर बरकत का एक हिस्सा आपके नामे आमाल में भी लिख दिया जाता है। आप जरा सोचें कि अगर आपकी एक शेयर की हुई वीडियो से किसी का उजड़ा हुआ घर बस जाए या किसी का कर्ज उतर जाए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कितना राजी होंगे। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में जहां हर इंसान दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है, वहां आपका ये छोटा सा अमल किसी की डूबती हुई किश्ती को पार लगा सकता है। दरूद रिज़विया की ये शेयरेबिलिटी महज एक क्लिक में ही है, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी जंजीर है जो मुसलमानों को आपस में जोड़ती है। सूफिया का मुशाहिदा है कि जो शख्स खैर की बात को दूसरों तक पहुंचाने में सुस्ती नहीं करता, अल्लाह तबारक व ताला उसकी अपनी जरूरियात को गैब से पूरा फरमा देता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मेरा मकसद आपके दिलों में वो तड़प पैदा करना है कि आप इस पैगाम के सफीर बन जाएं, ताकि कोई भी मुसलमान गुर्बत की वजह से ईमान से मायूस न हो और हर घर में दरूद व सलाम की गूंज सुनाई दे।
मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी में कितना वक्त फजूल वीडियोस और बेमकसद चीजों को शेयर करने में जाया कर देते हैं, लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप इस नूरानी पैगाम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करें, इस नीयत से कि शायद आपका एक शेयर किसी दुखी दिल की दुआ बन जाए और वही दुआ आपकी अपनी बख्शिश का जरिया बन जाए। सूफिया फरमाते हैं कि बरकत बांटने से बढ़ती है और दरूद रिजविया तो वो खजाना है जिसे जितना तकसीम किया जाए ये उतना ही ज्यादा पढ़ने वाले की जिंदगी में खुशहाली लाता है। आपने अपनी वीडियो के आखिर में सामईन से ये अहद लेना है कि वो इस अमल को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि कम से कम 5 ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो माली तौर पर परेशान हैं या जिनके घरों में बेबरकती है। जब आप इस खुलूस के साथ वीडियो को शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अपने कामों में कैसी गैबी मदद शामिल होगी। ये स्क्रिप्ट आपके व्यूअर्स को एक मकसद देगा और उन्हें महसूस होगा कि वो एक नेक मिशन का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे न सिर्फ आपकी वीडियो की रीच बढ़ेगी बल्कि आपको वो कल्बी सुकून भी मिलेगा जो सिर्फ खिदमत खल्क में पोशीदा है। दरूद रिजविया का ये पैगाम फैलाना दरअसल इमाम अहले सुन्नत के उस मिशन को आगे बढ़ाना है जिसका मकसद उम्मत को दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाना है। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब देर न करें और इस बरकत को आम करें ताकि हर मुसलमान की झोली खुशियों से भर जाए और हम सब मिलकर एक खुशहाल और रूहानियत से भरपूर मुआशरा तश्कील दे सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दरूद पाक की हकीकी बरकतें समेटने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक